कि रिक्वायर्ड है? हाँ, अगर है तो आप भेज देना सर। चलो मैं भेज दूंगा, एक छोटे छोटे से पेज थे तो मैं चलो उनको अलग से भेज दूंगा। ठीक है, चलो इस स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ जी सर, प्रिंट्स तो हो रही है सर। चलो स्टार्ट करते हैं। Okay then, now we start our the next class regarding the family law. Till now we cover the concept of family law and a source of family law, marriages and maintenance, somehow the dower. Now I come with the adoption. तो अब तक हमने ये देखा कि शादी कैसे होती है, मेंटेनेंस का क्या है एंड डावर का क्या सीन है एज पर द मुस्लिम लॉ एंड द हिंदू लॉ। नाउ द थिंक अबाउट द अडॉप्शन। पहले अडॉप्शन स्टार्ट करने से आई जस्ट गो विद द वर्ड पैटर्निटी। इफ यू रिमेंबर in a Hindu marriage act I said that ki when whatever be the marriage either be a violate, void and voidable, the child of that marriage always be deemed as a legitimate child. The complete object of the law and the complete object of the state to never be create a illegitimacy with the child always be deemed to a legitimate child. After that we come the concept of the adoptions कि if there the child doesn't have their parents, doesn't have their the natural parents, if they are not able to maintain him appropriately, then they can give to the adoption to his child, and the parents who didn't have the child they can also take the adoption of child. There is some law behind regarding it कि कौन दे सकता है, कौन अडॉप्शन ले सकता है और किसको अडॉप्ट करा जा सकता है. 3 things is there: who can give and who can take, कौन दे सकता है और कौन ले सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, एंड whom कैन गिव, और किसको दिया जा सकता है. जो चाइल्ड होगा, इट्स अबाउट चाइल्ड, इट्स अबाउट टेकर, अडॉप्ट, जिसने अडॉप्ट करा है, इट्स अबाउट गिवर. 3 things are related with the adoptions. The concept always be behind the, अब जो हम adoption पढ़ेंगे स्पेशली विद द हिंदू लॉ, वी that are deal with the Hindu Adoption and Maintenance Act from section 1 to section 80. The concept behind the adoption is to provide the better future to the child, and whatever we read regarding the concept of the child and whatever we read regarding the law of child, the single motive of that these laws are to be the welfare of child. चाइल्ड के वेलफेयर के लिए हम ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं. That is the thing behind the adoption. Now if I go with the adoptions in a Hindu law, so first of all if I discuss about the motive कि why the people adopted the child, there is so many motive behind that. बच्चे ना होना, they didn't have the child, they can adopt the child. They are alone within itself, that's why they adopt a child. They have a मेल बेबीज बट दे डिडंट हैव द फीमेल, या फिर उनके पास फीमेल बेबी है, मेल बेबी नहीं है, दैट्स वाई दे अडॉप्ट द चाइल्ड. देयर इज सो मेनी लॉजिक बिहाइंड फॉर द अडॉप्शंस. कोर्ट आर नेवर बी कंसर्न अबाउट द मोटिव, कोर्ट आर प्राइमरली कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड. इफ देयर इज अ वेलफेयर आर इनहेरेंट इन दिस अडॉप्शन, then court will be allowed, otherwise court will not be allowed. Clear with that? So complete object and complete scenario is about the welfare of child. If the welfare is possible, then we will be allowed it. Clear? Now we go with the कि कौन कौन दे सकता है. First of all, who can give the child? Parents. या तो मैं guardian लिखूँ या parents लिखूँ. Either be a mother or be a father. Both have the right to can give the adoptions their child, but the condition is that they have to be concerned with each other. ऐसा नहीं कि मदर फादर की बिना कंसेंट के दे देगी या फिर फादर बिना मदर के कंसेंट के दे देगा. अनटिल अनलेस द स्पाउस, द कंसेंट स्पाउस आर अनसाउंड, रिनाउंड द वर्ल्ड या फिर रिनाउंस द रिलीजन, वो है ही नहीं, उसकी डेथ हो चुकी है या फिर उसने हिंदू धर्म ही छोड़ दिया या फिर डिवोर्स हो चुका है, इफ़ दैट टाइप ऑफ कंडीशंस आर प्रेजेंट, अनसाउंड है, तो वो सिंगल कंसेंट के साथ वो उसको अडॉप्शन दे सकते हैं. अदरवाइज अगर दोनों अवेलेबल हैं तो दोनों की कंसेंट नेसेसरी है. क्लियर? अच्छा एक चीज़ और समझ लेना पहले कि जो भी मैं अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ दैट इज़ अबाउट द हिंदू. तो तीनों ही लोग, बेबी देने वाला, लेने वाला और बेबी जो चाइल्ड, वो सब हिंदू हो तब ये लॉ लगेगा, अदरवाइज दैट विल नॉट बी अप्लाइड.
क्लियर? ठीक है, तो मेल और फीमेल जो है दोनों में से किसी को भी अडॉप्ट करा जा सकता है और पेरेंट्स को दोनों की कंसेंट से मिलके फिर वो देना है। अब कौन ले सकता है? फिर से वही बात कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी ले सकती है, बट दे हैव टू बी टेक द कंसेंट फ्रॉम ईच अदर इफ दे आर प्रेजेंट। अगर वो नहीं है तो बात एक अलग है, अगर वो नहीं है तो नहीं है, तो उसमें वो एक्सेप्शन हो जाएगा, या फिर अनसाउंड है, कोई और अदर रीजन है, दैट विल बी अलाउड, पर दोनों की कंसेंट के साथ देंगे। सेकेंड थिंग इज दैट दे शुड हैव द डिफरेंस ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड एंड द पेरेंट्स ऑफ 21 ईयर। अगेन आई क्लियर इट मोर, अगर वाइफ सिर्फ एक फीमेल मेल को अडॉप्ट करती है तो उन दोनों के बीच में 21 साल का एज डिफरेंस होना चाहिए, और अगर एक मेल फीमेल को अडॉप्ट करता है एज अ चाइल्ड तो उन दोनों के बीच में भी 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। सो द डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द अडॉप्टेड चाइल्ड शुड बी एटलीस्ट 21 ईयर्स। क्लियर दैट थिंग? Yes, sir. Another thing is that if you are adopt a male child, then you should be ensured that you didn't have the male son, male grandson, male sons, मतलब कोई भी आपका मेल डिसेंडेंट में ना हो, आपका बेटा, आपका पोता, पोते का बेटा, पोते के बेटे का बेटा, कोई भी आपके पास मेल डिसेंडेंट ना हो। In the same way, if you are adopt a female child, then you should not be have a daughter, daughter's daughter या फिर son's daughter, तो फीमेल असेंडेंट आपके पास डिसेंडेंट आपके पास नहीं होनी चाहिए। क्लियर? Yes, sir. अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स अडॉप्शन आर आल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या ये दो तीन चीजें और हैं कि साउंड माइंड हो, मेजर हो और कंसेंट हो। जो भी बंदा अडॉप्ट कर रहा है या अडॉप्शन दे रहा है साउंड माइंड से हो, मेजर हो और फ्री कंसेंट के साथ ये वर्क कर रहे हो, कोई फोर्स ना हो। गेट इट? नाउ वी आर कम विद द चाइल्ड। व्हाट्स अबाउट द चाइल्ड? चाइल्ड शुड बी लेस देन 15 ईयर ऑफ एज। 15 साल से कम का होना चाहिए और अनमैरिड होना चाहिए। इफ द पर्सन इज अ मैरिड दैट कैन नॉट बी अडॉप्ट। ठीक है जी, 15 साल से कम एज हो और अनमैरिड हो, दैट चाइल्ड कैन बी अडॉप्ट। इसके बाद अडॉप्शन नहीं हो सकता। आप किसी को लव एंड अफेक्शन में रख रहे हैं, उसको नाम अपनी प्रॉपर्टी कर रहे हैं, दैट द डिफरेंट थिंग, बट द अडॉप्शन इज अ डिफरेंट थिंग। वेन एवर वाई यूज द वर्ड अडॉप्ट यू मेक द ड्यूटी ऑफ पैटर्निटी ऑन योर सेल्फ। आप फिर उसमें माता पिता का रोल अदा करेंगे। यू हैव टू बी वेरी क्लियर इट। लेकिन अगर किसी को ऐसे ही लव एंड अफेक्शन में रख लिया, 15 साल से बड़ा है या फिर मेजर कोई बच्चा है, उसको हमने अपने पास रख लिया, उसके नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दैट विल बी ट्रीटेड एज अ गिफ्ट एंड ट्रीटेड एज अ वर्क, नॉट मोर देन दैट। बट इफ आई से दैट आई अडॉप्ट इन यू, नाउ यू आर द पेरेंट्स, यू कैन नॉट गेट बैक फ्रॉम योर वर्ड्स। अब आप अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकते। क्लियर? चलो, नाउ वी गोइंग विद द इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन। इफेक्ट क्या है? दो चीजें बताऊंगा मैं। देखो, अडॉप्ट होने के बाद ये तो ऑटोमेटिकली क्लियर है कि जो अडॉप्टेड फैमिली है वही सारी फैमिली है, वही है वो पेरेंट्स मदर हैं, उनके जो रिलेशंस हैं अंकल आंट के, मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल के, किन्स के, सिबलिंग के, वही सारे आपके रिलेशंस होंगे। और यू आर ट्रीटेड दैट यू आर द रियल बॉर्न हायर ऑफ दैट फैमिली। आपने बॉर्न ही उसी फैमिली में करा है। दो इफेक्ट जो इससे अलग हैं, इट्स वन थिंग इज दैट यू कैन नॉट मैरी टू द गाय विद whom you cannot be marry if you are not adopted। अगर आपका अडॉप्शन होता है, सपोज कोई चाइल्ड है, वो अडॉप्ट हो गया, वो मतलब ये फैमिली 1 है और ये फैमिली 2 है। ये चाइल्ड यहाँ का था, यहाँ पे ये अडॉप्ट कर लिया गया, इस फैमिली के द्वारा इसे अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, अभी यहाँ पे आ गया। अब इस फैमिली 2 के जितने भी रिलेशंस होंगे तो प्रोहिबिट और स्पेंडर रिलेशनशिप वाला रूल फैमिली 2 का लग जाएगा। उन सब से किसी से शादी नहीं कर सकता। गेट इट? सेम रूल आर स्टिल अप्लाई विद द फैमिली 1 आल्सो। फैमिली 1 के साथ भी अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिससे वो मैरिज नहीं कर सकता, अगर वो अडॉप्ट ना हुआ होता
तो वो आज भी अडॉप्ट नहीं करता। तो मैरिज की जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है और स्पिंडा रिलेशनशिप है वो दोनों फैमिलीज के साथ लगेंगे, फैमिली 1 और फैमिली 2 दोनों के साथ। ठीक है। हाँ जी सर। सेकेंड थिंग इज अबाउट द प्रॉपर्टी। देखो भाई, अब नई फैमिली में चला गया, सारी प्रॉपर्टी जो इसमें वेस्ट होनी थी, जो भी एक लीगल हायर को मिलनी है, वो इसे मिलेंगी। और फैमिली 1 से जो जो प्रॉपर्टी अटैच्ड थी पहले, मतलब बाद में मिलनी है, मिली नहीं है, वो सारी छूट जाएंगी। लेकिन अगर उसके अडॉप्शन से पहले सपोज इस चाइल्ड को कोई प्रॉपर्टी मिल गई, अडॉप्शन से पहले, उसके बाद इसका अडॉप्शन हुआ, देन दैट प्रॉपर्टी आर स्टिल वेस्टेड विद दैट चाइल्ड। ये नहीं कि वो प्रॉपर्टी इसमें वेस्ट नहीं होगी, वो दोबारा से डाइवेस्ट हो जाएगी, फैमिली 1 पे वापस चली जाएगी, नहीं, वो इसमें रहेगी ही रहेगी। क्लियर? तो दो बातें हैं। हाँ बताइए बताइए, क्या चीज? तो बच्चे के पास प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी पहले से? इट कैन पॉसिबल मैम, इट कैन, कर देते हैं, काफ़ी सारी फैमिलीज नाम कर देती हैं, बच्चे के नाम को प्रॉपर्टी कर दी, कोई एफडी करा दी, बहुत सारी बैंकिंग स्कीम्स होती हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं, लाइफ टाइम प्लान ले लिया उसके नाम से, है ना। तो अगर ऐसा कोई, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक सुकन्या समृद्धि योजना होती है, कभी आपने उसका नाम सुना हो तो, हाँ जी सर। है ना। तो इसमें क्या है कि जो 5 साल से कम एज की जो बच्चियां होती हैं उनका ये अकाउंट होता है, दैट्स द गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम। तो आप उसमें मंथली, एनुअली जितने पैसे जमा करने हैं आप कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि इतनी करनी। और जब बच्ची की शादी होती है या फिर जब बच्ची की पढ़ाई के लिए 18 साल बाद, 21 साल बाद, उसमें से आप पैसे निकाल सकती है सिर्फ बच्ची। जो चेक विल बी कम फ्रॉम द बैंक, इट विल बी ऑन द नेम ऑफ द चाइल्ड। वो पेरेंट्स के नाम नहीं आएगा कभी भी, वो बच्चे के नाम से ही आएगा। अब सपोज ये कुछ फैमिली उसमें पैसे गिर रही है 5 साल 6 साल तक, 6 साल बाद उस बच्ची को किसी और को अडॉप्ट कर देती है, तो अब जो पैसा उस अकाउंट में गिर चुका है वो उस बच्ची का है। फैमिली अब ये नहीं कहेगी कि पैसा मुझे वापस दे दिया जाए। प्रॉपर्टी विल नॉट बी अगेन डाइवेस्ट टू द लास्ट फैमिली। क्लियर? हाँ जी सर। So two things are there in the effect. Whatever the effect in a normal adoption occur, it always be occur. नई फैमिली, नई प्रॉपर्टी, सारी चीज़ वो उसे मिलेंगी। बेसिक मैरिज की बात है कि मैरिज का प्रोहिबिटेड और स्पेंडर रिलेशनशिप F1 F2 दोनों फैमिलीज के साथ चलेगा, और प्रॉपर्टी अगर कोई अडॉप्शन से पहले मिल चुकी है तो वो उसके साथ कंटिन्यू चलेगी। एक मैरिज का, ये अडॉप्शन का सर चाइल्ड के साथ इनका रिलेशन बताया आपने, एक प्रोहिबिटेड बताया, ये एक बार दोबारा बताना सर। ये है कि देखो, फिर से एक बार यहाँ बताते हैं, एक फैमिली F1 है, एक F2 है। यहाँ पे इस चाइल्ड का बॉर्न हुआ, यहाँ पे ये बर्थ हुआ है इसका, ठीक है, यहाँ बॉर्न हुआ, फिर इस फैमिली में ये चला गया, यहाँ पे अडॉप्टेड फैमिली है, ठीक है जी, ये बर्थ फैमिली है। अब जैसे यहाँ पे चला गया, तो जो स्पिंडर रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो इस फैमिली से बनेंगे F2 से, तो उनके साथ ही मैं शादी नहीं कर सकता, जैसे कि बहन के साथ, मदर के साथ, फादर की मदर के साथ, फादर आंट के साथ, अपने F2 में किसी भाई की वाइफ के साथ, ये सारे स्पिंडर और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, ठीक है। जो स्पिंडा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो इसकी F1 के साथ बन रहे थे, अगर अडॉप्शन ना होता तो यहाँ भी तो कुछ बन रहे होंगे, उनके साथ अडॉप्शन के बाद भी नहीं कर सकता, ठीक है। दैट इज द थिंग कि अडॉप्शन के बाद भी फैमिली 1 के साथ जो स्पिंडा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बनने, उनमें भी नहीं हो सकता। क्लियर? चलो चले आगे। नाउ वी कम विद द आई थिंक टाइप। फर्स्ट पहले हम थोड़े से टाइप कर लेते, देन वी गो विद द अडॉप्शन रिगार्डिंग द मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ का बड़ा सिंपल सा है। फर्स्ट वी गो विद द टाइप, व्हाट्स अबाउट द टाइप ऑफ द मुस्लिम लॉ, सॉरी नॉर्मल हिंदू लॉज में क्या क्या टाइप है। देखो, गार्जियनशिप के थोड़े से टाइप है, कई बार ऑब्जेक्टिव आ जाता है। नेचुरल गार्जियन, हु इज द एक्चुअल गार्जियन हु गिव द बर्थ टू चाइल्ड, जो बाई नेचर गार्जियंस बने, पेरेंट्स, फादर्स एंड मदर, ठीक है, फादर एंड मदर आर योर नेचुरल गार्जियन। इफ आई से गार्जियन अपॉइंटेड, दीज आर द टेस्टिमेंट्री गार्जियंस, टेस्टिमेंट्री गार्जियंस, या फिर अपॉइंटेड बाय विल, मैंने अपनी बच्ची की कस्टडी किसी और को दे दी, या फिर आई नो कि आई एम गोइंग टू डाई, देन आई मेक अ विल कि ही विल बी द गार्जियन ऑफ माई चाइल्ड्स, ठीक है, ठीक है। तो दैट इज द टेस्टिमेंट्री गार्जियंस।
अपार्ट फ्रॉम दैट कि पेरेंट्स चले गए, नेचुरल गार्जियंस अवेलेबल नहीं है, टेस्टमेटरी गार्जियंस किसी को अपॉइंट करके नहीं गए, देन वी विल बी गो विद द गार्जियंस डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, बाय द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट के तहत कोर्ट को गार्जियन डिक्लेयर करेगी, या तो उसके रिलेटिव्स या उनके कोई भी नोन होंगे। अगर कोई भी नहीं आता तो जो ऑर्फनेजेस हैं या फिर कोई अदर अथॉरिटीज़ है, एनजीओ है, तो वहाँ पे उन्हें गार्जियंस बना दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द डी फैक्टो गार्जियंस। डी फैक्टो गार्जियंस आर नॉट द नेचुरल गार्जियंस बट दे आर डूइंग द रोल एज अ गार्जियन। These guardians didn't have the right to dissolve the property of a चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। बट ये कि जैसे नेचुरल गार्जियन के अब्सेंस में कोई ऐसा व्यक्ति जो गार्जियन का रोल अदा कर रहा है, तो दे आर ट्रीटेड एज अ डी फैक्टो गार्जियन। लॉ ने नहीं बनाया, दे जस्ट बाय फैक्चुअल कंसेप्ट से वो लॉ बन गए हैं। क्लियर? डी फैक्टो देखो, एक तो मैंने अब तक बताया कि टेस्टिमेटरी और डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, ये तो लीगल गार्जियंस थे। नेचुरल गार्जियंस तो डी फैक्टो और लीगल दोनों है ही, उसमें तो कोई हमें बात ही नहीं करनी। अपॉइंटेड बाय कोर्ट या अपॉइंटेड बाय पार्टीज की अगर मैं बात करूँ तो ये लीगल गार्जियन है। अब ये है कि कोर्ट में भी नहीं गया बच्चा, पेरेंट्स अवेलेबल है नहीं, तो कई बार होता है ना अंकल आंटी उसको रखने लगते हैं, या फिर ऐसा सच किसी ने डिसाइड नहीं करा कि मैं इसका गार्जियन हूँगा या वो उसका गार्जियन होगा, कि चल बेटा यहीं रह रहा तो यहीं रह ले, वो ऐसा चल रहा है। उसमें हम उनको डी फैक्टो गार्जियन बोलेंगे कि ना लीगली ही है और ना नेचुरली, बस फैक्चुअली वो उसमें उनके साथ रहते हैं, तो गार्जियन डीम्ड हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द एडहॉक गार्जियन। एडहॉक गार्जियन आर सिंपली फॉर द टेम्परेरी गार्जियन। जैसे कि ऑर्फनेजेस होते हैं, ऑर्फनेजेस को बच्चे दे दिए जाते हैं कि जब तक इन्हें कोई नहीं ले जाता तब तक आप इनकी टेक केयर करेंगे। दैट इज द एडहॉक गार्जियन। टेम्परेरी बेस्ड बनाए गए हैं, या फिर जब तक कोर्ट केस चल रहा है तब तक उस बंदे के पास है। जैसे कई बार जुडिशियल सेपरेशन का केस चलता है, बच्चा किसी के पास नहीं रह रहा होता, तो नाना नानी को एडहॉक गार्जियन बना दिया, दादा दादी को बना दिया। दैट इज द एडहॉक गार्जियन। क्लियर? एक छोटा सा कंसेप्ट है गार्जियन एट लिडम। इट्स मीन्स गार्जियन इन अ लिटिगेशन। ड्यू टू सम डिसेबिलिटी द चाइल्ड कैन नॉट बी represent himself, then they are allowed to someone to represent himself, that are deemed as a guardian at litigation। सिर्फ litigation के लिए वो guardian है कि litigation में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी फाइल साइन करनी है कौन सी नहीं करनी है, क्या कोर्ट के ऑर्डर में कौन सा वकील करना नहीं करना, that thing जो are decided by that guardian only for the litigation, not for any other purpose। clear? हाँ। क्या चीज़? हाँ हो अपॉइंट होते हैं या अपने आप ही सर? ये बच्चा अपने आप करता है। एक ऑर्डर था, इफ आई जस्ट गिव यू द नेम, ऑर्डर 31 या फिर ऑर्डर 33 है इंटीजेंट पर्सन्स का, वहीं पे चाइल्ड के रिगार्डिंग एक ऑर्डर है। सो दीज आर द समहाउ द गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड एट लिटिगेशंस। लेट मी टेल यू, गिव मी अ मिनट। Order 32, suit by or against the minor and the person of unsound mind. In that type of case, the person who deal that things are deemed as the guardian ad litem। इसे कई बार कोर्ट भी अपॉइंट कर सकती है, इवन उसके वो बच्चा जो है और उसके जो करंट गार्जियन होंगे वो भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि कोर्ट ने कोई गार्जियन अपॉइंट करा, अब वो कह रहे हैं कि भैया लिटिगेशन के लिए किसी और को अपॉइंट कर दीजिए, देन दैट कैन आल्सो बी अपॉइंट। ठीक है। हाँ, इनका जो गार्जियन एड लिटम होगा वो सिर्फ लिटिगेशन के लिए होगा, उसका बच्चे की प्रॉपर्टी से, बच्चे की केयर टेकिंग से कोई मतलब नहीं है। वो लिटिगेशन में क्या होगा, और वो लिटिगेशन में सिर्फ वो एक्ट करेगा जो चाइल्ड के वेलफेयर के लिए हो। ठीक है जी। चलो, यहां तक हमारा हिंदू लॉ में गार्जियंस का कंसेप्ट और टाइप्स ऑफ लॉ कंप्लीट हुए। नाउ वी कंसर्न अबाउट द मुस्लिम लॉ। इन द मुस्लिम लॉ वी कॉल इट द हिजानत। हमने मुस्लिम लॉ में से हिजानत का नाम दिया। नाउ द थिंक आई गो विद द इफ डिस्कस अबाउट द मुस्लिम लॉ। सो मुस्लिम लॉ एज सच दे आर नॉट मेक अ स्पेशल लॉ रिगार्डिंग फॉर द अडॉप्शंस। दे आर नॉट दैट मच गिव इवन द रिकॉग्निशन टू द अडॉप्शन। उन्होंने इतना एज सच किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करा अडॉप्शंस के केस में। बट समहाउ सरिया एक्ट गिव द सम ऑफ द
a custom regarding the adoptions, Sharia Act 1937 and Oath Act 1969 of section 29 of the Oath Act somehow give the concept of paternity and the adoptions. If the parents, if the any couple या फिर any single person want to take the another guy as their child, then they can do. And what they give the name of adoption? They give the hijanat. The thought process अडॉप्शन इसमें मुस्लिम लॉ में क्या बोलते हैं सर इसको? हिजानत मैम, हिजानत, इजाजत। हाँ, सिंगल जेड, ठीक है. द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द हिजानत इन अ मुस्लिम लॉ इज नॉट अबाउट द अडॉप्शन. वहाँ पे जो उनका ऑब्जेक्ट चल रहा है, जो फिलॉसफी चल रही है, वो अडॉप्शन पे कम कंसर्न करते हैं, वो नेम ऑफ पैटर्निटी पे ज़्यादा कंसेप्ट करते हैं. वो कहते हैं ना कि किसी बच्चे को बाप का साया देना या फिर पिता का नाम देना, वो उस मोड में जाना है. वो एक तरीके से वो ये प्रिविलेज नहीं समझते कि वी गेट द अडॉप्ट अ चाइल्ड. They are more privileged to give the name to the child of his father. वो फादर का प्रिविलेज ना मानते हुए बच्चे का प्रिविलेज मानते कि चलो उसे पिता तो मिले. Apart from them, they are not that much concerned about the hijanat. They simply said that the person can adopt a child it at any age. They didn't make the criteria like कि भाई इतनी एज का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आपकी ये क्वालिफिकेशन. दे आर नॉट कंसर्न अबाउट. दे गिव द राइट टू एनी कपल एंड एनी सिंगल पर्सन टू अडॉप्ट अ चाइल्ड इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ देयर स्पाउस. ठीक है, तो मुस्लिम लॉ ने एज सच इस पे पैटर्निटी पे कोई ज्यादा कंसर्न नहीं करा. ठीक है, दे जस्ट गिव परमिट, गिव द परमिशंस कि आप ले सकते हैं अडॉप्शन. वो जैसे कहा है ना कि सरिया में वो बैन नहीं है, इतनी बात उन्होंने रखी है बस. क्लियर? सो हेयर वी डन द कंसेप्ट ऑफ गार्जियनशिप. गार्जियनशिप का जो कंसेप्ट है यूजीसी नेट के लिए थोड़ा सा क्वाइट इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कैपेसिटी ऑफ गार्जियनशिप में कि भाई कौन ले सकता है, कौन दे सकता है और किस बच्चे को अडॉप्ट करा जा सकता है. अपार्ट फ्रॉम देन दे आल्सो कैन बी द क्वेश्चन कम फ्रॉम द टाइप्स ऑफ अडॉप्शंस. ठीक है, चल, एनी डाउट? ओके देन, बाय.